السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان کے مغفرت عشرے کا چھٹا دن ہے، 16واں روزہ ہے اور 16ویں تراویح۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر غور کریں تو ہمیں اس کا انداز آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، یاد دہانی کی ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی پیغمبر نبی دنیا میں آئے ان کے قصے ہمیں بتا دیے ہیں، تاکہ ہمیں ہمارا اتہاس بھی پتہ چلے۔ ان سب کے بارے میں ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب قرآن ہم پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے۔ ہند نامہ آپ کے لیے یہ سنہرا موقع عطا کر رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم 16ویں پارے کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ میں جناب توفیق اسلم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں پارے کے بارے میں بتانا ہے۔ اس میں سورہ کہف کی 75 سے لے کر 110 آیتیں ہیں اور سورہ مریم کی 1 سے لے کر 98 آیت پوری سورت، اور سورہ طٰہٰ بھی ہے 1 سے لے کر 135 تک۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور خضر علیہ السلام نے وہ لڑکے کو قتل کر دیا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ تو تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد تم سے کوئی پوچھوں تو آپ کو اختیار ہے، اس مرتبہ تو تمہیں میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر دونوں آگے چلے، ایک بستی میں گئے اور ان سے کھانا مانگا کہ وہ ضیافت کریں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ وہیں ایک دیوار تھی ٹوٹی ہوئی جو گرا چاہتی تھی، اس کو خضر علیہ السلام نے پھر سے درست کر کے مضبوط باندھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی جس کو میں نے عیب لگایا تھا۔ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ وہ کشتی اس غریبی کے پاس رہے، اس لیے اس میں نے چھید کر دیا تھا۔ اور وہ لڑکے کے والدین جو ہے وہ مومن تھے، اور یہ لڑکا اندازہ تھا کہ یہ لڑکا سرکشی اور کفر کرے گا، اس سے بہتر بچہ ہم انہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور یہ دیوار جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، اور ان کا باپ جو ہے ایک بہت نیک آدمی تھا۔ تمہارے رب نے یہ چاہا کہ جوان ہو کر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ تمہارے رب کی رحمت ہے، میں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ انجام تھا ان کاموں کا جو میں نے تمہیں بتا دیا، جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے اسے زمین میں بسایا اور اسے ہر چیز دی تھی اور بہت سامان دیا تھا اس کو، تو اس نے سفر کے لیے اس سامان کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مغرب میں گیا جہاں سورج ڈوب رہا تھا، کیچڑ کے پانی کے اندر اس نے دیکھا، وہاں ایک قوم کو اس نے دیکھا۔ ذوالقرنین سے کہا گیا کہ چاہے اس قوم کو تو سزا دے یا تو چاہتا ہے تو بھلائی کرے ان کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ جو گناہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا اور وہ خدا کی طرف لوٹایا جائے گا تاکہ خدا اس کو اور زیادہ سزا دے۔ پھر اس نے اور نیا سامان کیا اور دوسرے سفر میں نکلا، یہاں تک کہ وہ مشرق کی طرف جا کر پہنچ گیا جہاں سے سورج نکل رہا تھا، اور وہاں ایک ایسی قوم تھی جس کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، دھوپ ہی میں رہتی تھی، وہ کوئی سطر اس کے لیے جو ہے نہیں تھا۔ اس طرح ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں ساری خبروں کا، اور ہم جو ہے اس سب سامان ان کو دیتے ہیں۔ پھر اس نے اور سفر کا سامان کیا اور وہ جا پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان۔ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی جو بات کو نہ سمجھتی تھی۔ اس نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج اور ماجوج بہت مفسد ہیں اور ہم کو ستاتے ہیں، ہم تمہیں خراج دے دیں تاکہ تم ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، تم میری مدد کرو اپنی محنتوں سے اور کچھ سامان سے۔ کہا کہ تم لوہے کی چادریں لاؤ۔ پھر اس نے ساری لوہے کی چادروں کو اس میں فکس بٹھا دیا اور اس کو آگ سے لال کر دیا پوری طریقے سے۔ پھر کہا کہ میرے پاس گرم تانبا لاؤ، اور وہ اس پہ ڈال دیا۔ اب نہ وہ چڑھ کر آ سکتے تھے یاجوج ماجوج، نہ اس کے اندر کوئی شفاف یا
एक छेद बना सकते थे। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की मर्जी है, जब तक ये रहेगी अल्लाह चाहेगा तो ये टूट जाएगी और पूरा फसाद फैलेगा, और क़यामत से पहले तो ये होना ही है कि याजूज माजूज आएंगे, सबके साथ हर टीले से आएंगे और वो सबके साथ मिल जाएंगे और एक फसाद अजीम जो है होना है। बस ये अल्लाह की मर्जी है, ये जब तक चाहेगी रहेगी। इसके बाद बताया कि मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा घाटे में रहने वाले वो लोग हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं गुमराही में और समझ रहे हैं कि हम कुछ काम बना रहे हैं। अगर समंदर को स्याही बना दिया जाए, इंक बना दिया जाए और अल्लाह की नेमतों को उसे लिखना शुरू कर दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगी, और इतने ही समंदर उसमें और डाले जाएं तब भी वो ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें कभी लिखने में भी पूरी नहीं आएंगी। यहाँ पर जो है सूरे कहफ ख़त्म होता है। अब सूरे मरियम, ये मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पे है। जिक्र करो तेरी रब की रहमत का ज़करिया अलैहिस्सलाम पर। उसने दुआ की कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, तुझसे मांग कर कभी मैं महरूम नहीं रहा, मुझे ख़ानदान वालों का ख़तरा है और मेरी बीवी बांझ है, और तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता कर। तो फरमाया तुझे बेटा होगा जिसका नाम याहिया होगा, और इससे पहले इस नाम का कोई लड़का आज तक नहीं गुजरा है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे होगा ये? तो उन्होंने कहा कि तुझे भी मैंने पहले पैदा किया था जबकि तू कोई चीज़ न था। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा फिर निशानी क्या होगी? तो कहा कि 3 पूरी रातें, यानी 3 दिन और 3 रात तुम किसी से बात न कर सकोगे। उन्होंने मेहराब से लोगों से कहा कि तुम तस्बीह और हम्द करते रहो। इसके बाद फरमाया ऐ याहिया, किताब को मजबूत पकड़ ले, हमने बचपन में ही तुझे नबूवत और हिकमत अता की है और अपनी मोहब्बत तुझे अता फरमाई है, तुझे पाकीज़गी दी है और तक़वे से तुझे नवाजा है। वो अपने वालिदैन के लिए बड़ा ही नेक था और जब्बार हरगिज़ न था। उस पर सलाम है जब वो पैदा हुआ और जिस दिन उसको मौत आएगी और जिस दिन वो दोबारा उठाया जाएगा। इस किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो जब अपने घर वालों से अलग होकर वो मशरिक़ी मकान में, पूर्वी मकान में उनकी तरफ से उसने पर्दा किया था। फरिश्ता आदमी की शक्ल में उसके पास आया। मरियम ने कहा मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू मुत्तकी है तो हट जा यहाँ से। उसने कहा मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, तुझे पाकीज़ा लड़का अता करने के लिए आया हूँ। वो बोली मुझे लड़का कहाँ से होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं और न मैं बदकार हूँ। उसने कहा तेरे रब ने फरमाया ये काम मुझ पर आसान है ताकि लोगों के लिए निशानी हो, रहमत हो और इसका बड़ा अज्र है, और ये बात अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। उसे हमल रह गया, उसे लेकर वो दूर चली गई। फिर दर्द ज़ाह जब ज़चगी का वक्त आया तो वो एक दरख्त की जड़ की तरफ आई बोली काश इससे पहले मैं मर चुकी और एक भूली बिसरी चीज़ हो गई होती। बस उसे नीचे से आवाज़ आई कि तू घबरा नहीं, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा निकाला है और तू इससे सैर हो जा, और खजूर का तना हिला, तुझ पर ताज़ा खजूरें गिर पड़ेंगी, तू खा पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे नज़र आए तो कहे कि मैंने अल्लाह के लिए नज़र मांगी है, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगी। वो अपने कौम के पास लौटी तो उसकी कौम ने कहा ये तू क्या गज़ब की चीज़ लाई है, यानी वो बच्चा, न तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी माँ बदकार औरत थी। उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। उसने कहा बच्चा क्या कहेगा? तो बच्चे ने कहा अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया है और जहाँ कहीं मैं रहूँ मुझे बरकत दी है। मुझे हुक्म है कि मैं नमाज कायम करूँ, मैं ज़कात अदा करूँ और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करूँ। मुझ पे सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा। ये हैं ईसा इब्न मरियम। सच्ची बात में ये लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह पाक है, किसी को बेटा नहीं बनाता। वो जब किसी चीज़ करने के लिए कहता है तो हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारा रब भी अल्लाह है, तो उसी की इबादत करो। और लोगों ने इसमें बाद में इख्तिलाफ किया। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा है कि उन्होंने कैसे अपने वालिद से कहा कि तुम ये मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो, ना ये फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। ऐ अब्बा जान, मुझे वो इल्म दिया गया है जो तुम्हें नहीं दिया गया, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो ज़्यादा रास्ता
तुम पाओगे। और इसके बाद उनके वालिद ने कहा अगर तू न रुका तो मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा, ये एक बड़ी मुद्दत के लिए तू मेरे सामने से हट जा। उसने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह मुझ पे बहुत मेहरबान है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मगफिरत की दुआ करूंगा। वहां से वो चले गए तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी और लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ हो लिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर इसाक और याकूब जैसे बेटे दिए और उनको नबी बनाकर उठा। इसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा आता है कि कैसे जादूगर उनके पास गए और फिर फिरौन ने कैसे उनको झुटलाया और अल्लाह तबारक तआला ने कैसे फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमाई। कहा कि इसमें जिक्र करो इस्माइल अलैहिस्सलाम का, इदरीस अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का और औलाद नूह का, कि ये सब अच्छे लोग थे, नमाज ज़कात का हुक्म देते थे और सजदा करने वालों में से था। इसके बाद नाखलफ लोग इनके जानशीन हो गए। सबसे पहले उन्होंने नमाजें गंवा दी, नमाजें पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी शुरू कर दी, तो उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो तौबा करें और अच्छे अमल इख्तियार करें तो फिर उनके लिए जन्नत है। तेरे रब की कसम, इन्हें और शयातीन जो हैं उन सबको हम जमा करेंगे और जहन्नुम के बीच उन्हें घुटनों के बल हम हाजिर कर देंगे। तुम में से हर एक को इस पे से गुजरना है, यानी जहन्नुम पे से गुजरना है। तक़वे वालों को हम बचा लेंगे और जालिम लोग उसमें ढकेल दिए जाएंगे। इनकार करने वाले मानने वालों से कहते हैं कि किसकी हालत अच्छी है आज, कि तो कहो कि कितनी ही बस्तियां पहले गुजरी हैं जो हलाक हुई, वो तुमसे ज्यादा साजो सामान रखती थीं, यानी साजो सामान से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। ये कहते हैं रहमान ने बेटा बनाया है, बहुत बुरी चीज है। इतनी बुरी बात वो अपनी जबान से निकाल रहे हैं कि करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये रहमान के शयान शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। हम सब गिन गिन कर रख रहे हैं और जरूर हम नेक अमल का बदला देंगे। इसको आपकी जबान में हमने आसान किया है ताकि तुम मुत्तकियों को खुशखबरी सुनाओ और जो नाफरमान हैं उनको डराओ। कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, क्या तुम उसको कहीं महसूस करते हो या उसकी कोई आहट भी तुम्हें सुनाई देती है? यहाँ पर सूरह मरियम खत्म हो गई। अब सूरह ताहा। ताहा ये हुरूफ मुक़त्तआत है। ताहा ये कुरान इसलिए नहीं उतारा गया है कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। जमीन व आसमान के बनाने वाले की ओर से एक याद दहानी है जो डरे। क्या तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची है? अब यहाँ पूरा किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का है कि जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से ये कहा कि तुम यहाँ रहो, या तो मैं आग के पास से कोई अंगारा ले आता हूँ, या हो सकता है वहीं से मुझे आगे का रास्ता भी मालूम हो। तो वहाँ से खुदा ने उन्हें आवाज़ दी कि देखो तुम अपने जूते उतारो, तुम एक मुक़द्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ और मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए तुम नमाज कायम करो। और मैं तुम्हें निशानियाँ बताता हूँ कि तुम अपनी जो है ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है मूसा? तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ये आसा है। कहा इस क्या करते हो? तो कहा मैं बकरियां चराता हूँ और इससे पत्ते भी झाड़ता हूँ। कहा इसे फेंक दो। फेंकते ही वो अजदहा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि पकड़ो इसको मैं फिर से अपनी सूरत में ले आऊंगा पहली की हालत में। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा तो पूरी पहली की सूरत में थे। इसके बाद उनसे कहा कि तुम बगल में अपना हाथ डालो। वो जब बगल में हाथ डालकर उन्होंने बाहर निकाला तो वो चमकता हुआ था सूरज की तरह। तो कहा कि ये दोनों निशानियां हैं कि तुम जाओ, फिरौन बड़ा सरकश हो गया है, उसको नरमी से समझाओ, शायद कि वो डरे और रहनुमाई को इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि फिरौन के पास जाने से तो मेरा बड़ा दिल भींच रहा है। तो उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उक़दतुम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे और मेरे बात को जो है आसान कर दे ताकि वो पूरी तरीके से समझे। और कहा कि ये हारून मेरा भाई है, इसको मददगार बना दो ताकि हम तुम्हारी अल्लाह बहुत तस्बीह करें, तुम्हारा बहुत जिक्र करें, तो और ये मेरा हाथ मजबूत करे। अल्लाह तबारक तआला ने कहा मूसा जा, जो कुछ तूने मांगा है वो सब कुछ हमने तुझे अता कर दिया है। इससे पहले भी तो हम तुझ पे एहसान कर चुके हैं, तेरी माँ पर भी हम वही कर चुके हैं। जब फिरौन जो है कत्ल कर रहा था हर बच्चे को, हमने कहा था कि अपने बच्चे को संभाल और तुझे घबराहट हो तो इसको एक ताबूत में डाल दे और वो ताबूत दरिया में डाल दे। वो दरिया उसको एक साहिल पर ले जाएगा और मेरा और उसका दुश्मन उसे उठा लेंगे। मैं अपनी मोहब्बत उस पर डालूंगा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर, और फिर
सब लोग उसको चाहेंगे। उसकी बहन उसके पीछे गई और कही कि मैं बताऊंगी बच्चा किसका दूध पिएगा, कौन इसकी परवरिश करेगा। इस तरीके से हमने वापस उसके माँ के पास उसको लाया और उसकी माँ की आंखों को हमने जो है ठंडी कर दी। ऐ मूसा, फिर इसके बाद तुम बड़े हुए, तुमने कत्ल किया था, अल्लाह ने उससे तुम्हें नजात दिला दी, फिर तुम मदियन की तरफ चले गए, फिर हमने तुम्हें अपने काम का बना लिया है। ऐ मूसा, तो जाओ अब फिरौन के पास जाओ और नरमी से बात करो, शायद कि वो याद दहानी डाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि वो हम पे हाथ डालेगा या हम पे हमारे साथ सरकशी करेगा, जुल्म करेगा। अल्लाह ने कहा कि डरो नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की है कि उन्होंने कहा तू किसके पास से आया है? उन्होंने कहा मैं रब्बुल आलमीन से। उन्होंने कहा ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? उसने कहा वो जिसने जमीन आसमानों को पैदा किया, जो जिलाता है, मारता है, ये सारी बातें हुई। तो उसने कहा कि पहले के लोगों का क्या होगा? ठीक है, आज हम ईमान लाते हैं, पहले के जो लोग गुजरे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनका मामला अल्लाह के हाथ में, जो चाहे। फिर इसके बाद ये सारी गुफ्तगू होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया है, इसी मिट्टी में तुम्हें दफन होना है, इसी मिट्टी से हम तुम उठाएंगे। हम जब तदफीन करते हैं तो मिट्टी डालते हैं लाश पर, तो हम ये आयत भी पढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि तू जो है जादूगर है बड़ा और अपनी जादू से हमें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। फिर उसने पूरे वो जादूगरों को जमा किया, उन्होंने अपनी रस्सियां डाली, उससे मूसा अलैहिस्सलाम पहले घबरा गए। फिर अल्लाह ने कहा कि तो अपना असा डाल, असा डालते ही वो सारे जादू खत्म हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। जादूगर ईमान लाए। उसने कहा कि तुम कैसे ईमान लाए जबकि मैंने तुम्हें इजाजत ही नहीं दी थी? अब मैं तुम्हारे हाथ पैर अलग दिशाओं में काटूंगा और तुमको फांसी दूंगा। उन्होंने कहा हमको अल्लाह मिल गया है, अब जो कुछ तुझे दुनिया में करना है हमारे साथ कर। हम तो ये जादू पे भी नहीं आना चाह रहे थे, कराहत कर रहे थे, तूने हमको जो है इस पे हमारे साथ लाया है। और फिर वो ईमान लाए और उनको जो है ना फिरौन ने फिर कत्ल कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के वो पीछे पड़ गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि सारी बनी इसराइल को लेकर तू निकल और जैसे तू नदी से पार होगा वो तेरा पीछा करेंगे, हम उनको डुबा देंगे। इस तरह हमने बनी इसराइल को जो है नजात दी और उन्हें मन और सलवा भी अता किया और कहा कि खाओ पियो लेकिन सरकशी मत करना वरना तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा ऐसी होती है कि आदमी अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलना शुरू कर देता है, उसकी एक निशानी है। उसे क्या, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बुलाया कि तौरात दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे 70 लोगों से पहले वहां पहुंचे तो कहा मूसा क्या चीज है जो तुझे जल्दी लाई है? उन्होंने कहा मैं तेरी रजा चाहता था। उसने कहा कि तू तो आ गया लेकिन पीछे की जो तेरी कौम है वो बैठक गई है, एक सामरी ने उनको बहका दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से भरे हुए अपनी कौम के पास आए और उन्होंने कहा कि क्या बहुत देर हो गई थी क्या? मैं तो अल्लाह तबारक तआला से तुम्हारे लिए हिदायत लेने के लिए आया था। उन्होंने क्या करें कि हमारे जेवरात हमारे ऊपर बहुत भारी हो गए थे, हमने उसको एक सामान में डाला और उसके अंदर सामरी जो है उसने कुछ मिट्टी डाली तो वो बैल के जैसा बन गया पूरा नक्शा और आवाज भी बैल की जैसी आने लगी। तो उसने कहा कि यही है तुम्हारा खुदा और भूल गया है। और हम सब उसके लिए इत्तेकाफ करने लगे और उसके लिए जो है पूजा करने लगे और उसी की इबादत में हम गए। तो मूसा कहा गया कि वो ना तुमको कोई फायदा पहुंचा रहा था ना नुकसान पहुंचा था, ना तुम्हारी दुआ जो है सुनता था, इसके बावजूद तुमने उसको खुदा मान लिया। फिर हारून अलैहिस्सलाम की बात भी उन्होंने नहीं मानी। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा देखो ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई भी है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनको हारून अलैहिस्सलाम पे भी गुस्सा आया। उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ी और उनके सिर के बाल भी खींचने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखो लोगों को हंसने का मौका मत दो, मैं ये समझता था कि अगर ऐसा करूंगा तो तुम ये कहते कि तुमने भेद डाल दिया है, तफरका डाल दिया है अपनी कौम में, इसलिए मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर सामरी को यह सजा मिली कि उनसे कहा गया कि अब तो जिंदगी भर लोगों से ये कहो, ऐसी बीमारी हो गई उसको कि तू मुझे बिल्कुल नहीं छीना, जैसा भी कोरोना है ना छीने से हो जा रहा है, ऐसी बीमारी हो गई तो कोई उसको छीता ही नहीं था। फिर अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ये जो तूने बुत बनाया था अब हम इसको जला देंगे और पानी में मिला देंगे, देख तू किसकी इबादत करता था। फिर कहा कि तुम्हारा खुदा तो एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। इस तरह हम तुम्हें किस्से सुनाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले गुजरे हुए लोग हैं उनकी, और कोई इनकार करने वाला अब बोझ नहीं उठाएगा मगर खुद का, और जिसको वो बहकाएगा उसका बोझ भी उठाएगा।
اس دن لوگ پوچھتے ہیں پہاڑ کا کیا ہوگا، تو پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، زمین صاف چٹیل میدان بنا کر رکھ دی جائے گی، اس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی نہ کوئی ٹیک اس کے اندر ہوگی، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ بالکل جو نیک اعمال کریں گے ان کا بدلہ نیکی ہے، جو برے اعمال کریں گے ان کا بدلہ برا ہے۔ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تاکہ تم سب کو یاد دہانی ہو جائے، اور پھر بتایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کے بہکاوے میں نہ آنا، لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے تم تو ہمیشہ زندہ رہو گے یا تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ اس کی باتوں میں آ کر آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دونوں کے کپڑے اتر گئے، اور وہ جو ہے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا کہ دیکھو یہاں نہ تمہیں بھوک لگتی ہے زیادہ، نہ تم ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، لیکن تم اگر نافرمانی کرو گے تو تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب توبہ کی آدم علیہ السلام نے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی، اور کہا کہ دنیا میں میں اپنی رحمتیں، اپنی کتابیں اتارتے رہوں گا، تو جو اللہ کی بات کو مانے گا پھر اس کو گمراہی نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے میرے اس ذکر کا انکار کیا، اللہ کی باتوں کا اور اس کی کتابوں کا انکار کیا، دنیا میں اس کو تنگی ہوگی، یعنی اس کو غریبی آئے گی، اور قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ پوچھے گا قیامت میں کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، تو کہے گا کہ تو دنیا میں مجھے بھولا رہا تو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ صبر کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ لوگ کہتے ہیں، تسبیح کرو، اس کی حمد کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات میں اور دن کے کناروں پر بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اور خود بھی اس پہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ اگر ہم ہلاک کر دیں تو وہ یہ کہتے، اگر ہم یہ ہلاک کر دیتے یہ لوگوں کو تو وہ یہ کہتے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ کیوں نہ تو نے رسول ہمارے پاس بھیجا کہ ہم اس کی اتباع کرتے اور ہم جو ہے ایک ملت بن کے رہتے، اور لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون ہدایت پر۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا